Chemistry chapter 2 is matter around us pure. Let's start with this chapter. So, this word pure, which is written on the packs of many items when you go to market, you see pure milk, pure ghee, pure butter, pure fruit juice. For a common person, pure means there is no adulteration. There is no, unwanted substances which are added in, in this food substance, in food article. Okay, so pure means there is no adulteration. In normal terms, pure means uh, there is no addition of unwanted substances in that. Okay, but in chemistry, when you talk about pure substances means substances which have a single type of particles. All the substances which have only a single kind of particles are pure substances in chemistry. Okay, so when we talk about pure substance in chemistry, please do not say that Amul ghee or falana falana ghee is a pure substance. It is not. Okay, it is a mixture of many different kind of particles, but a pure substance on the other hand is made up of only one type of particles, one kind of particles. For example, if you ask me what is a pure substance, I can say pure water, H2O, right? Pure water or H2O. It is made up of only water molecules, H2O molecules, and that's why I call it a pure substance. So water, it consists of same type of particles, that is molecules of water, and that's why pure water is a pure substance. And there are many pure substances like water. We will talk about them in the whole chapter. So one thing is very clear. Now I want all of you to have a pen and a notebook ready, and please take notes. Specifically those students who are having difficulty in forming answers. For them, it is absolutely necessary to take down notes as per my lecture, as per what I'm speaking, and as per the the statements which I'm highlighting. Right? So the chapter started from what is a pure substance, and the first statement which we highlighted was that pure substance is made up of or consists of a single type of particles. I gave an example, pure water, H2O. Okay, the next important statement which I want your attention on is this means that all the constituting particles of pure substance are the same in their chemical nature. So thus a pure substance represents a single substance. Pure substance is a single substance made up of, if you want you can write in bracket, made up of only one kind of particles. That is a pure substance. So as we look around, we can see most of the matter around us exists as mixture of two or more pure substances or components. For example, sea water. हमारे अराउंड मोस्टली मिक्सचर दिखेंगे हम. प्योर सब्सटेंस दिखते हैं लेकिन बहुत कम. ठीक है. So sea water, minerals, air, soil, these are all mixtures because they are made up of two or more pure substances or components. That's why the things which are around us are mixtures. So matter overall is of two types. The matter around us is of two types, pure substances and mixtures. So let's understand matter in a detail with respect to this idea of pure substances and mixtures. So most of the materials which we come across in our daily life are mixtures. So mixture contains more than one kind of pure substance. A mixture may be solid, liquid or gas. For example, water from a pond or a river is a mixture of many salts.
and clay particles. So the first example of mixture which we are getting over here is water from a pond or a river or a well or sea is a mixture of many salts and clay particles. The water that we drink also contains very small amounts of various salts dissolved in it. That's why it has got that taste. The air around us, the biggest example, biggest and the most common example of mixtures, air. Okay? Air around us is a mixture of some gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, and water vapor. These all gases are present in varying quantity. Gases of different kinds, not kids. I wrote kids. Gases of different kinds are present in air in varying quantity. What do you mean by varying quantity? Varying quantity means ever changing, different quantities. I'm sorry. It is made up of varying. That means changing quantities. At some places, the oxygen level are very high near forests, right? Open areas. But at some other places, oxygen level is low. Maybe, at very high altitudes in Leh Ladakh, right? In very high altitudes, the oxygen levels are less, but near sea level, near forests, the oxygen levels are high. So oxygen is one of the component or constituent of air, which is a basically mixture. That uh, component does not have a fixed ratio in air, in the mixture of air, right? And that is one of the characteristic property of mixture, that its constituents are mixed with each other in non-fixed proportions. That is, the proportion of the constituents always keeps on changing. Some places there is a lot of pollution, there is a lot of dust, there is a lot of humidity. Other places there is not. So air is always around us, and air has different quality everywhere because of its changing components, constituents, and that's why air is a mixture. Correct? Many substances which we eat, such as milk, jaggery, sharbat drink, which appear to contain only one type of substance, are in fact mixtures. They contain different types of substances present in them. So mixture is made up of two or more pure substances. ठीक है? अभी क्लियर हो गया प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है? नोट्स भी ले रहे हो तुम अच्छे से टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजी में? बस इतना इनफ है. इतने अच्छे से अगर नोट्स लोगे तो यू विल बी, यू नो यू विल हैव नो इश्यूज इन फॉर्मिंग आंसर्स, बिकॉज यू नो ना कि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज क्या है, इन व्हाट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इज रिटर्न. दैट टू पे अटेंशन टू दैट इज वेरी नेसेसरी. अदरवाइज क्या होगा कि यू विल ओनली लिसन टू द लेक्चरर और द टीचर. अब ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है इसलिए आई कैन एक्चुअली शो यू द टेक्स्ट बुक एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है? जब मैं क्लास में लेक्चर लेता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं ओरली समझाऊंगा, तुम लोग मेरे फेस के सामने देखोगे, फिर तुम वही याद रखोगे जो तुम्हें सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है. तुम वो नहीं याद रखोगे जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, प्रिंटेड है. सो बेसिकली वी हैव टू बैलेंस बोथ. इसलिए मैं जो अभी बोल रहा हूं तुम्हारे साथ, वो तो तुम्हारे कानों में जा रहा है, साथ साथ मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं तुम्हारे स्क्रीन पे, दैट इज टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजी, वो भी इंपॉर्टेंट है. हमें इन दोनों को बैलेंस करना है. हमें चीजें समझनी भी है और हमें ये भी सीखना है कि कैसे टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में हम आंसर को रिप्रेजेंट कर पाए. किसी भी पॉइंट को हम, कन्वर्सेशन ऑलवेज in a textual term is always better. It is very easy for you to explain your point of view to the other person if you know this technical terms, whether it is science or history or whatever subject it may be. अगर तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, elaborate करनी है, you need textbook terminology, you need that language, you cannot talk in informal
language. You need formal touch with it. Textbook gives it. ठीक है, so it is good that we are doing this online sessions and you are getting the idea of what is a textbook language in front of you. Otherwise your तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं. I'm just talking some random things over here, but I want to say that there are many kids, you know, they have while a teacher is teaching them, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है. वो टीचर का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो टीचर का एक्शंस क्या है, वो हाथ कैसे हिलाते हैं टीचर, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बात करते हैं. तो ये सारा ध्यान होता है यहाँ पे. तो वो मैंने डिस्ट्रैक्शन हटा ही दिया है. टीचर का सिर्फ वॉइस आता है तुम्हारे पास, ठीक है, और वो भी तुम बीच में बात नहीं कर सकते. तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे पूरा पूरा. और तुम्हारे सामने क्या है, टेक्स्ट बुक है. मतलब तुम्हारा ध्यान भटकने का कोई चांस ही नहीं है. बीच में हाँ कोई वीडियो दिखा दिया या कुछ पिक्चर दिखा दिया तुम्हें फॉर योर बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल दे दिया, कुछ नॉर्मल बातें कर ली, ठीक है, बट उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की हमें जरूरत ही नहीं. सो इन अ वे दिस ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग इट इज मोर इफेक्टिव. ये तुम लॉन्ग टर्म टर्म में समझोगे. और आगे नेक्स्ट ईयर जो हमारा मोड रहने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी हाइब्रिड. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल फॉर नेक्स्ट ईयर कि नेक्स्ट ईयर क्लासेस कैसे होंगे, क्योंकि सब खुल जाएगा. वी होप के सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ खुल जाए, एंड एज सुन एज एवरीथिंग गेट्स ओपन अगेन, और तब जो क्लास होंगे दैट्स गोइंग टू बी हाइब्रिड. सो वी आर गोइंग टू टेक केयर व्हाट यू डू एट होम, एंड वी आर गोइंग टू टेक केयर व्हाट यू डू एट क्लास ऑल्सो. अब पूरा क्लास फ्लिप करेंगे हम लोग, एंड दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द यू कैन से सरप्राइज यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट ईयर. सो बी रेडी फॉर दैट. Okay, let's go ahead. So what are constituents? ये एक वर्ड बार बार मैंने भी यूज किया है और ये तुम पढ़ोगे भी आगे. और components. So these are the substances which make a mixture. ठीक है. The components of a mixture retain their properties. Retain करना मतलब what do you mean by retain? Retain means, what do you mean by retain? To retain means to sustain, maybe you can say sustain. और एक वर्ड दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है. और टू होल्ड, टू रिटेन मीन्स टू होल्ड, ठीक है. तो क्या रिटेन हो रहा है, क्या होल्ड हो रहा है, कौन रिटेन कर रहा है? कंपोनेंट्स रिटेन कर रहे हैं. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स वो चीजें होती है जिससे एक मिक्सचर बनता है, ठीक है. तो कंपोनेंट्स क्या करते हैं? कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? दौलत, धन, जायदाद, हिस्सेदार, जायदाद, वारिस, ये सब नहीं होता, ठीक है. प्लीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कंपोनेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करते हैं. कब रिटेन करते हैं? जब उनको एक मिक्सचर में डाला जाता है. सो व्हेन द कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है. The properties of a mixture are those of the substances of which the mixture is made up of. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी, लेमोनेड की बात करते हैं. लेमोनेड किससे बना है? लेमोनेड इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, लेमन जूस, शुगर एंड सॉल्ट. जनरली और भी कुछ चीजें डालते होगे. कोई बोलेगा नहीं मैं शुगर नहीं, मैं तो गुड़ वाला लेमोनेड पीता हूँ. कोई बोलेगा नहीं मैं तो उसमें ब्लैक पेपर भी डालता हूँ. ठीक है, डाल दो, सब डाल दो, तुम्हें जो डालना है डाल के लेमोनेड बनाओ. लेकिन लेमोनेड इज अ मिक्सचर, ये फैक्ट तुम डिनाई नहीं कर सकते. क्यों ये मिक्सचर है? व्हाई लेमोनेड इज अ मिक्सचर? आई टेल यू. सी, लेमोनेड is made up of its constituents, which are water, lemon juice, sugar, salt, and so on and on and on. ठीक है. All these substances retain their, all these components or constituents of lemonade retain their original properties in lemonade. लेमोनेड में ये सारे सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, ठीक है. बिकॉज दीज सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, लेमोनेड tastes or looks a little bit like water also, liquid होता है वो. Tastes little bit of lime also, tastes of sugar also, tastes of salt also. सबका टेस्ट उसमें मिक्स है, सबकी प्रॉपर्टी हमें दिखती है. थोड़ा खट्टा भी है, थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा सा सॉल्टी भी है, पानी जैसा भी लगता है, ठीक है. पेपर डालो तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा तीखा भी लगता है, ठीक है. सो
Because lemonade is a mixture, all the constituents which make up the lemonade, they all retain their properties, and lemonade shows all the characteristics of its components. ठीक है, तो मिक्सचर में ये बात हमने लेमोनेड से समझा. लेमोनेड वाज जस्ट यू कैन से an idea to understand what mixture is. सो हमने लेमोनेड के एग्जाम्पल से ये समझा कि मिक्सचर में, कोई भी मिक्सचर ले लो, कोई भी मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, जिससे मिक्सचर बनता है, these constituents, these components, they retain their property once they are put in the mixture. ठीक है, सो मिक्सचर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दूसरा मैंने तुम्हें रेशियो भी बताया था एयर के एग्जांपल में कि भाई कहीं ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कहीं कम होता है. ठीक है, तो मिक्सचर की दो प्रॉपर्टी तो हमने ऐसे ही बैकड्रॉप में समझ ली. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी मिक्स्ड विद ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी इवन व्हाइल बीइंग मिक्स्ड विद ईच अदर. ठीक है, अच्छा, लेमोनेड के एग्जांपल में हम लोग वो रेशियो वाला समझ सकते हैं. कोई बोलता है मुझे लेमोनेड में 2 चम्मच शुगर चाहिए, कोई बोलता है मुझे 1 चम्मच शुगर चाहिए, कोई बोलता है मुझे 3 चम्मच शुगर चाहिए. सब में शुगर अलग अलग डाला है. कोई ज्यादा मीठा लेमोनेड है तो कोई कम मीठा लेमोनेड है. लेमोनेड तीनों है, हर एक लेमोनेड 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 है, लेकिन किसी में शुगर कम है, किसी में ज्यादा है. मतलब कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो सब में अलग अलग हो सकता है मिक्सचर में. तो ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें 2 चम्मच शुगर है उसको लेमोनेड नहीं बोलूंगा मैं, वो मेरे हिसाब से लेमोनेड नहीं है. 2 चम्मच क्यों डाला, ऐसा नहीं होता यार. वो भी लेमोनेड है, वो थोड़ा सा मीठा है या थोड़ा कम मीठा है तुम्हारे हिसाब से, बट लेमोनेड वो भी. ठीक है, ओके. अब क्या है, आगे क्या है, सेपरेशन. सेपरेशन की बात करते हैं. तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. तीसरी प्रॉपर्टी हम मिक्सचर की पढ़ रहे हैं, बहुत ही हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज है ये सब. A mixture can be separated by physical methods into its 2 or more pure substances. ठीक है, तो तुम अगर तुम्हारे पास शुगर वाटर है, सॉल्ट वाटर है, तुम उसको हीट करोगे तो वाटर पूरा इवेपोरेट बन के स्टीम बन जाएगा. और शुगर और सॉल्ट, ये दोनों जो प्योर सब्सटेंसेस है, ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर पाउडर्ड फॉर्म में नीचे तुम्हें मिलेंगे. मतलब जब वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे तो जो क्रिस्टल्स बचेंगे वो शुगर के और सॉल्ट के होंगे. अब ये मत बोलना इनको अलग कैसे करेंगे, अलग नहीं करना है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट को हम सेपरेट कर सकते हैं. अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स. ठीक है, बट एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ सोडियम क्लोराइड है जो मिक्सचर नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं तुम्हें बताऊंगा. वो एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, वो एक कंपाउंड है, और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में. तो इसके बारे में हमें आगे बढ़ना है. लेकिन अब तक हमने क्या सीखा है कि मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं. मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी हमेशा रिटेन होती है, और मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो, अब हम, क्योंकि हमने मिक्सचर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, अब बारी है प्योर सब्सटेंस की. नाउ इट इज द टाइम वेयर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेस. On the basis of their chemical composition, on the basis of their chemical composition, the pure substances can be classified as elements and compounds. दो बड़े बड़े नाम तुम्हारे सामने आ गए. मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है. फिजिक्स में ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया था, जब ऐसे पहले वर्ड्स आए थे तुम्हारे सामने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर, स्केलर, फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी थी तब मोशन से, है ना. वैसे ही फर्स्ट चैप्टर में तो हमने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं है, लेकिन this chapter and these two terms, they mark the commencement of chemistry
in your life. So welcome with a round of applause. Please clap. Loudly clap करो कि तुम्हारे आजू बाजू सब लोग तुम्हें पागल समझे. Clap, clap, clap. Because we are welcoming chemistry. तो इतना हल्का फुल्का वेलकम थोड़ी देना है उसको. आगे तो केमिस्ट्री तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद करेगा, nobody knows. मजाक कर रहा हूँ. केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ब्यूटीफुली बोरिंग. ओके, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड, लेट्स गो अहेड. ओके, सो एलिमेंट्स. आओ समझते हैं एलिमेंट क्या होते हैं, डीप में समझते हैं. रॉबर्ट बॉयल, नाम याद रखना, साइंटिस्ट, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे. रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661. He said that element could not be broken down into simpler substances. This definition of an element is still applicable. अभी भी एप्लीकेबल है. एलिमेंट सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. और एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, बिवेयर एंड बिहोल्ड, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर. दिस इज अ फ्रेंच नेम. सो जब फ्रेंच नेम बोलते हो ना, तुम्हें पता नहीं स्कूल में किसी ने फ्रेंच पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं. पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है. ओके, तो स्कूल में जब हम फ्रेंच पढ़ते हैं तो हमको सिखाया जाता है फ्रेंच, लेकिन बहुत सारी स्कूल की टीचर्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है फ्रेंच की, तो वो फ्रेंच के प्रोनाउंसिएशन को इंडियन तरीके से बोलती है. जैसे कि यहाँ पे लेवोसियर, 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 ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है. एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर. थोड़ा सा ना एक थ्रो आना चाहिए. फ्रेंच, जब फ्रेंच बोलते तो फ्रेंच लगना चाहिए कि फ्रेंच आदमी बोल रहा है. ठीक है, नहीं तो क्या फायदा है यार. एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, इसका कोई फायदा नहीं. एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर. ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट, ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट. थोड़ा जोक कर सकते हैं हम बीच में, ठीक है, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड. अरे सर ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, मेरे को तो एग्जाम में आने वाला है ये चैप्टर. आई डोंट केयर. एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, he was a French chemist, and he was the first one to establish an experimentally useful definition of element. तो रॉबर्ट बॉयल ने तो बोल दिया कि भाई एलिमेंट ऐसा कोई एक सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. बट एंटोनी फ्रेंच लेवोसियर, फ्रेंच नहीं, लॉरेंट, उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज, beware, behold, the definition of element: a substance which can neither be broken down into simpler substances nor formed from two or more simpler substances by any known physical or chemical process. ये definition हमको दी एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने. ठीक है, मामा मिया, ये कैरेक्टर सबको पता है. ठीक है, बट वो इटालियन है और ये फ्रेंच है. फिर भी हम एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर बोलेंगे. ठीक है, अ सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस नॉर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. जिस सब्सटेंस को हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या फिर जो सब्सटेंस दूसरे किसी सिंपलर सब्सटेंसेस से नहीं बना है, ठीक है, वो खुद ही एक सिंपलर सब्सटेंस है, उसे और सिंपल नहीं कर सकते, उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस. ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इट्स अ प्योर सब्सटेंस. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. एग्जाम्पल देखो इसका क्या दे रहे हैं लोग. हाइड्रोजन, इट इज एन एलिमेंट. आई एम सॉरी, ये जो अगर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में एम्फेसाइज नहीं किया, मैं फिर से कर रहा हूँ. इट इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट. ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट नाम का प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं. वैसे कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, बट हम जो प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, नॉर इट इज मेड अप ऑफ एनी अदर सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से एलिमेंट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सिंपल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट
it cannot be split up into two or more simpler substances by the usual methods of carrying out chemical reactions by applying heat, light and electricity. हाइड्रोजन को तुम दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। जो तुम्हारी मेथड्स है ना, अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे तुम हाइड्रोजन को स्प्लिट नहीं कर सकते। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयन, गोल्ड, कॉपर, मर्क्यूरी, सल्फर, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इनको तुम सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही बना है, हाइड्रोजन किसी और से नहीं बना है। हाइड्रोजन को तुम हीट करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, लाइट में रखो, वो हाइड्रोजन ही रहेगा। इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखना, हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो नहीं है ये, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ये नहीं है, पहला नहीं है, नॉट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज दैट एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर substances, they are made up of atoms, ठीक है, they are made up of atoms and elements are made up of atoms. याद रखना, atoms are the smallest particles of elements, smallest particles of elements. An element cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of only one kind of atoms. Thus, we can also define an element as, second definition आ गई। अच्छा, second definition से पहले, why can't an element be split into two or more simpler substances? Because it is made up of only one kind of atoms. So we can define element as the pure substance which is made up of only one kind of atoms, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें बताया यहाँ पे एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किससे बने हैं, एटम से। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आयन, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है, आयन। आयन इज एन एलिमेंट and it is made up of only one kind of atoms called iron atoms. आयन एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। आयन किससे बना है, आयन के एटम से। सल्फर, सल्फर क्या है, सल्फर एलिमेंट है। why? Because sulfur is made up of only sulfur atoms. The element mercury is made up of only mercury atoms and that's why mercury is an element, pure substance, ठीक है। वैसे ऊपर एलिमेंट्स के एग्जांपल देखे हमने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयन, गोल्ड, कॉपर, मर्क्यूरी, सल्फर, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स है। यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर and how many types of atoms are there? 118 known till date, known till date elements. known till dates क्यों क्यों लिखा, क्योंकि अब तक आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। अब ये आज की डेट तक, क्योंकि मैंने आज पेपर में पढ़ा नहीं कि कोई नया एलिमेंट आया है कि नहीं, पिछले बहुत सालों से 118 ही है, ठीक है। चलो हम लोग इसको चेक करते हैं रियल टाइम में, गूगल पे क्या दिखा रहा है, कितने एलिमेंट्स है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो बोल देता हूँ भाई एक टाइप के एलिमेंट है, लेकिन पता नहीं कितने बढ़ गए, कम हो गए, देखते हैं। टोटल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड 118. Since 2016, the periodic table has 118 confirmed elements. From element 1, that is hydrogen, to element 118, organesson.
Elements 113, 115, 117, 118. The most recent discoveries were officially confirmed by the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, in December 2015. Congratulations. वाओ, सो कंफर्म हो गया। आज की डेट के अंदर विकिपीडिया दिखा रहा है 118 है। अच्छा, 118 कम ज्यादा होते रहते हैं क्योंकि ये कभी बोलते हैं कि ये एलिमेंट है या नहीं है, या कोई नया आ जाता है कभी, फिर बोलते हैं नहीं है, उसको उड़ाओ। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है, इतना दिल पे मत लेना। लेकिन 100 टिल डेट नोन टिल डेट एलिमेंट्स है 118। ठीक है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। चलो, कुछ चीजें मेमोराइज करनी है तुम्हें। क्या चीजें हैं? एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। नाइट्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the atmosphere. Oxygen is the most abundant element in the Earth's crust. Oxygen and silicon are the main constituents of sand, soil and rocks. Right? ठीक है, सिंपल चीज है ना बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। There are about 118 elements known at present, out of which about 92 have so far been found to occur naturally. 92 तो नेचुरली अकर करते हैं, बाकी 118 में से बाकी कितने बचे? एक तो 18 plus 8, that is 26. Remaining 26 have been prepared in laboratories. Wow. All these elements do not occur in the crust of Earth to the same proportion. कुछ एलिमेंट ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। The most abundant element in Earth's crust are oxygen and silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, hydrogen, chlorine, carbon, etc. From these elements, all other substances on the earth are made. So, we can say that elements are regarded as the building blocks of the universe. जो अभी हमने पढ़ा, oxygen and silicon are most common elements and they are major constituents of sand, soil and rocks. Oxygen also occurs as a free element in the atmosphere and in combination with hydrogen in water. The most common elements found in our body are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, etc. सब इंफॉर्मेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। फिजिक्स में मुझे बताना पड़ता है क्यों होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्यों का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि है भाई, ऐसा है। ऐसा है तो याद रखना है, ठीक है। सो एलिमेंट्स मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड एंड मे बी गैसेस। अमॉन्ग ऑल द नोन एलिमेंट्स ओनली मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन, ये देखो H, ये इसका सिंबल है एलिमेंट का। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना सिंबल्स का एप्लीकेशन नहीं है, तो इतना दिल पे मत लेना सिंबल्स को। बट हाँ, अगर याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे तो याद करना ही करना है इसको। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन and noble gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon, etc. are gases, while all the other elements are solids. दो लिक्विड है, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे गैसेस है और बाकी सारे सॉलिड्स है। ठीक है, एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है गैसियस एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स और सॉलिड एलिमेंट्स का एग्जांपल्स के साथ। प्लीज इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। क्या होता है ये सब? सो एलिमेंट्स में बी फर्दर डिवाइडेड, सिंपली डिवाइडेड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी। तो मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स के पास लस्टर या शाइन होता है, उनको पॉलिश कर सकते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनका सिल्वरी ग्रे कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल से वायर बना सकते हैं। मेटल्स आर malleable, they can be beaten with hammer into thin sheets without breaking. Metals are hard and have high melting and boiling points. तुम्हें पता है क्लास 10th में अभी मैंने ये सब पढ़ाया था
एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें तुम्हें फिर से ये सब पढ़ना है, बट अभी लर्न कर लो, आगे भी काम आएगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी क्या होती है हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये सारे मेटल्स हैं, हम जानते हैं ना, मेटल्स को यूज भी करते हैं। मेमोराइज क्या करना है? देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टिल टुडे। 92 एलिमेंट्स उसमें से नेचुरल है, रिमेनिंग मैन मेड है। ये सब मेमोराइज बीच बीच में आता है ना, ये रिवाइज करवाता है तुमको चीजें, ठीक है। तो अगर पहले नहीं लिखा है वापस लिख लो अभी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट सॉलिड होते हैं, ये तुम्हारी नोट्स भी है एक्चुअली। अगर तुम नोट्स ये मेमोराइज से लेके भी, मतलब साइड में अगर तुम बॉक्स बना के ये लिखते हो नोट्स, तो तुम्हें बहुत काम आएगी एग्जाम के पहले रेफर करने के लिए। तो रेडीमेड नोट्स मैं नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इतने एलिजिबल तो होने ही चाहिए कि खुद की नोट्स बना सके मेरे लेक्चर सुन के। नहीं तो फिर वो ही नोट्स देने का चक्कर, और वो प्रिंटेड नोट्स दे दो, रेडीमेड नोट्स दे दो। मैं ये सब काम नहीं करता, मुझे चाहिए कि यार नॉलेज जो है ना वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रेडीमेड, रेडीमेड ले लो ये बस। सब कुछ रेडीमेड का जमाना है यार, नॉलेज को मत लाओ रेडीमेड में। 11 elements are gaseous. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. तुम बोलोगे सर वाटर भी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, और वो तो नॉन मेटल है। भाई वाटर नॉन मेटल है, लेकिन वाटर एलिमेंट नहीं है ना, हम तो सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वाटर तो कंपाउंड है। तुम बोलोगे सर कंपाउंड क्या होता है, मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको खत्म करके विल गो टू कंपाउंड्स। एलिमेंट gallium and cesium exist at liquid at a temperature above 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर तुमने गैलियम और सीजियम ये दोनों को अपने अगर हाथ में लिया ना, तो दे विल स्टार्ट मेल्टिंग। तुम्हारी बॉडी की वार्मथ से वो मेल्ट होना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखो। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे आर नॉट शाइनी, एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल हर एक कलर में आता है, येलो कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, अलग अलग कलर्स के। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब उनको ऐसा स्ट्राइक करेंगे तो रिंगिंग साउंड नहीं आएगा मेटल्स जैसा। Non-metals generally have low melting point and boiling points. They have low densities. Examples of non-metals are hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iodine, carbon, bromine, phosphorus, etc. About 80% of the elements are metal. जितने भी 118 elements है ना, उसमें से 80 metals है, and remaining 20% are 80% metals है, okay, and remaining 20% are non-metals. All the metals are solid except mercury, which is a liquid at room temperature. As we have learnt about, bromine is also a liquid at room temperature, but it is a non-metal. And the last kind of elements are metalloids. Some compounds have intermediate properties between those of metals and non-metals. कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर बिटवीन, देयर प्रॉपर्टीज आर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब उनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होती है, एंड दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर, प्लीज रिमेंबर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ठीक है। ये साइड में जो सिंबल्स लिखे हैं वो ये एलिमेंट्स के सिंबल्स है। आगे लर्न कर रहे हैं, अभी से कर लो तो अच्छी बात है। Okay, now we are starting with compounds, and before I start, let me just check. Okay, let's do it. So, what is a compound? See, compound is also a pure substance. मैंने अभी इस ये जो pure substances का जो मिक्सचर से हमने शुरू किया था, मिक्सचर हमने समझ लिया, बहुत ही ब्रीफली समझ लिया हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को और मिक्सचर क्या होता है और इसके एग्जांपल्स को। बट जब प्योर सब्सटेंस हमने शुरू किया, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एग्जांपल भी दिए मैंने, 118 एलिमेंट्स है,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स। और जो दूसरे टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो है कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ more than one type, more than one kind of pure substance. Compounds are made up of more than one kind of pure substance. जो एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस से के को केमिकली कंबाइन करके बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। एक मिनट, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस केमिकली combined in a fixed proportion। अभी तो इसको डेफिनेशन को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी? विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यहां पे लिख लेता हूं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी फिजिकल और chemical means, which cannot be broken down into any physical, into pure substances, broken down into नहीं, broken down into pure substance by any physical or chemical means। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था इसका? हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हें सबको पता है H2O। H2O एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना है ना? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस है ना इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, H2O। तो तीन एटम है टोटल, अलग अलग टाइप के तीन एटम है, उससे बना है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ कंपाउंड। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये केमिकली कंबाइंड है। अच्छा, इनको सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से। वो कैसे कर सकते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंपाउंड क्या होता है वो समझिए। अच्छा, और एक एग्जांपल चाहिए कंपाउंड का, NaCl। पता है तुम्हें NaCl क्या है? रोज खाते हो यार, फिर भी नहीं पता क्या होता है NaCl? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, यस, दैट इज अ कंपाउंड। इट इज अ कंपाउंड बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, वन एटम ईच। और एक एग्जांपल चाहिए, CO2। सबने सुना है CO2, सबने पढ़ा है CO2 के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो हमारे एक्सेलेशन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। They use carbon dioxide, right, to make their own food, yeah, and they give out oxygen. They give out oxygen. Does that happen? Yeah, they do. They do. Definitely they do. Biology है ना, इसलिए थोड़ा confusion रहता है। Anyways, so yes, so carbon dioxide is also a compound. Water is also a compound. Sodium chloride is also a compound. Compound is made up of more than one kind of pure substances chemically combined in a fixed proportion. चलो, तो ये जो फिक्स्ड प्रपोर्शन है इसका क्या मीनिंग है? तो ये जो फिक्स्ड प्रपोर्शन है वो बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है एंड बाय मास भी हो सकता है। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट ओवर हियर। अ फिक्स्ड proportion could be by
the number of atoms or by मास। ये जो फिक्स प्रोपोर्शन की हमने बात की है ना, वो फिक्स प्रोपोर्शन नंबर ऑफ एटम्स में भी होता है और मास में भी होता है, और नहीं एंड दोनों में होता है। जैसे कि H2O, ठीक है, H2O में नंबर ऑफ एटम्स से जो रेशियो बनता है, प्रोपोर्शन बनता है, let me just write it over here. H2O में proportion by number of atoms and proportion by mass, दोनों देखते हैं। H2O में what is the proportion between hydrogen and oxygen by the number of atoms? It is 2:1 and it always remains 2:1। मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी वाटर बनेगा। It is never found HO2. It is never found water is never found as H2O2. Water is never found as HO. Water is never found as H3O or HO3. No, always H2। So मतलब number of atoms का जो proportion होगा वो जब 2:1 बनेगा होगा तभी water बनेगा, ठीक है। And proportion by mass means, see, we know that mass of hydrogen is 1, so there are two hydrogen, okay, and mass of oxygen is 16, so 2:16 का simpler form क्या है, 1:8। मतलब हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो कितना है, 1:8। The ratio by mass of hydrogen and oxygen is how much? It is 1:8. The ratio by the number of atoms of hydrogen and oxygen is how much? 2:1। Means water तभी बनता है जब ये रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो दो एलिमेंट्स के बीच में हो, उनके नंबर ऑफ एटम्स के बीच में भी फिक्स रेशियो हो और उनके जो एलिमेंट्स है उनके मासेस के बीच में भी फिक्स रेशियो होना चाहिए, तभी एक कंपाउंड बनता है। या एक हम लोग अगर बोलेंगे कि अ कंपाउंड एग्जिस्ट्स ऑलवेज इन अ मैनर दैट देयर इज अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन, देयर इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन between the number of atoms of the combining of there is a fixed ratio between the combining atoms of that compound and there is a fixed ratio of the mass of the combining atoms of that compound, ठीक है। चलो और भी कंपाउंड्स के एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे और एग्जांपल दिए तुम्हें। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सॉल्ट NaCl तो सब लोग पढ़ते हैं, और भी है NH3, अमोनिया, ये सब के बारे में तुम्हें क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है। शुगर C12H22O11 जो तुम खाते हो, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा Na2CO3। तुम बोलोगे सर ये केमिकल फॉर्मूले इसके लर्न करने पड़ेंगे। देखो अभी तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ तुम अगर अभी लर्न करोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे चैप्टर्स में शायद थोड़ा बहुत काम आएगा तुम्हें। देन लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मार्बल, iron sulfide FeS, hydrogen chloride HCl, copper sulfate CuSO4, sulfur dioxide SO2. These are all examples of compounds. The compounds can be formed by different chemical methods from their constituent elements. Alternately, it can be decomposed into their constituent elements by different chemical methods. For example, water is a compound made up of two elements of hydrogen and one atom of oxygen. It can be formed by chemical combination of hydrogen and oxygen in a fixed proportion of 1:8 by mass as well, right? So hydrogen and oxygen, which are basically elements, can give you water, which is a compound, ठीक है।
Atomic mass of hydrogen is 1, oxygen is 16. So that in water H2O, the ratio of hydrogen is to oxygen is 2 is to 16 or 1 is to 8. मैंने तुम्हें अभी बताया. Conversely, water can also be broken down into its simpler substances or elements, that is hydrogen and oxygen, by passing electric current through it. So water can be broken down into hydrogen and oxygen. And it may be noted that during decomposition, मतलब जब water breakdown होगा, hydrogen and oxygen are also obtained in a fixed proportion of 1 is to 8 by mass. मतलब हमेशा याद रखना किसी भी कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनका जो प्रपोर्शन है बाय नंबर और बाय मास विल ऑलवेज स्टे कांस्टेंट. सो इन अ केमिकल कंपाउंड, so a chemical compound contains the same elements in fixed proportion by mass. The common examples of compounds are water, common salt, carbon dioxide जो हमने देखा. It is very interesting to note that only about 112 elements are known. 118 actually, ये गलत है. But the number of compounds is known as very large. This is not very strange. We know that there are only 26 letters in English alphabet, है ना? A B C D से लेके Z तक. But a large number of words तुम्हारी डिक्शनरी में मिलेंगे तुम्हें, can be framed out of these different combinations of letters. In music also, there are only 7 swaras. 7 सुर होते हैं, right? सारे गामा पदा नी सा, पदा नी actually. But so many tunes can be created with the help of these. Similarly, innumerable compounds can also be prepared by the combination of two or more kinds of atoms. ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तुम्हें एग्जांपल दिया. उसका एक कंपाउंड है H2O, हमें पता है क्या है, वाटर. दूसरा एक कंपाउंड है H2O2. यू नो व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. दोनों लिक्विड है, दोनों वाइट कलरलेस लिक्विड है, लेकिन H2O2 इज अ पॉइजन. ये पी नहीं सकते, तुम मर जाओगे. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड इन ड्रेसिंग द वुंड. जब तुम्हें चोट लगती है ना तो वो वुंड को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि वो सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स को मार देता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक वाटर बनाता है, एक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड रेशियो चेंज कर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है. दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से कितनी अलग है. तो ऐसे ही दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से हजारों कंपाउंड बन सकते हैं. इसलिए एलिमेंट सिर्फ 118 है लेकिन कंपाउंड्स मिलियंस है. ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और फिर हम मिक्सचर पे जाएंगे. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज हमने शुरुआत कर दी है इस टॉपिक की. कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक ही होमवर्क है कि नोट्स ले लेना. तो नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट खत्म करेंगे. थोड़ा लंबा चैप्टर है, सो आई माइट हैव प्रॉमिस्ड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स के हाँ तुम्हारी एग्जाम से पहले मैं खत्म कर दूंगा. मैं अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, but I'm going to try my level best to finish. If I may not be able to finish, इसका ये मतलब है कि मुझे डिटेल में जाना है किसी एक टॉपिक में और उसमें मुझे टाइम लग रहा है. ठीक है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी एंड प्लीज बेयर विथ मी कि अगर मुझे टाइम लगे तो लगने दो, क्योंकि ये चैप्टर को अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन मैं जल्दी जल्दी में खत्म करूँ फॉर योर एग्जाम. ठीक है, so I'll see you in the next class. Bye bye.